21A, question number 5. They are asking us if the given points are collinear or not. Collinear means what? They lie on the same line. Okay, so there are 3 points given. I will first plot those 3 points here. Okay, what are the points? A. Point A is -1, 2. So -1, 2. That means -1 is x coordinate, 2 is y coordinate. So -1 कहाँ होगा? यहाँ पे ये 2, -2 and 0 के बीच में. Okay, so यहाँ पे कहीं and -1, 2 और 2 यहाँ पे है. So -1 and 2 means the point will be somewhere here. Correct. -1 की लाइन होगी 2 और 0 और -2 के बीच में, -1 और यहाँ से ये 2. So this point is -1, 2. Next point. This is point A. This was point A. Now the point B is 3, -1. 3, -1. So 3 कहाँ पे है? 0, 2 और ये 2 और 4 के बीच में 3 है. ओके, एंड -1 y एक्सिस पे -1 कहाँ पे है? यहाँ पे. तो x का 3 यहाँ पे, y का -1 यहाँ पे है. So trace this. You will get a point here. This will be point B. Okay, and then point C, 7, -4. 7, -4. So 7 is here between 6 and 8. 7 or -4. So here, this is point C, 7, -4. Done? Plotting done of all the points. Okay, Anchal. Bhumi, did you see the first lecture of coordinate geometry? Because if you haven't seen that, you won't be able to understand. You have to see the first lecture. Should we join? What should you join? I'll allow you to unmute yourself. Just keep yourself mute if not necessary. If you have any doubt, you can unmute yourself and ask me. Sir. Yes. So actually we need to join the points or we have to keep it still? Acha, join the points. Acha, you are asking that. Okay, huh. Yes. So once you have plot all these 3 points, you have to take a scale and join the points. Okay. If you are able, if a single line passes through all 3 points, अगर एक straight line pass हो रही है तीनों points से, then it is collinear. अगर एक straight pass नहीं हो रही है, for example आपको points ऐसे मिल रहे हैं 1, 2 and 3. So एक point यहाँ से यहाँ पे और दूसरा ऐसे, तो ये straight line नहीं है. So this is not collinear. But अगर आपको straight line मिली, okay, तो it will be collinear. This is how you have to do the sum.
I think you will get it as collinear. This will be collinear. Yes, sir. Okay. Now let's do one more sum of the same type. So, Yes. so we have to write that these 3 points are collinear. Yes, yes, yes. You have to write it. You have to write that points A, B, C are collinear. Okay, sir. Let's do the second one. Let's do the second one. PQR. 3 points are PQR. So first point is -2, -1. So X may -2 and Y may -1. Sir, which sum? Second, sub question 2. X ka -2 and Y ka -1. So here will be the point. We'll have the point here. Then Q is 2, 1. So X में 2 and Y में 1. X का 2, Y का 1. So the point will be here. Always remember, this first one is the X coordinate, second one is the Y coordinate. C is 8, 4. So X में 8, Y में 4. So ये 8, ये 4. 4 की लाइन जहां पे मीट हो रही है मार्क अ पॉइंट है. Now try to join these 3 points using a scale. It should be one straight line. I think they are collinear. सर अगर कोलिनियर नहीं भी हो तो भी ज्वाइन करना है. ज्वाइन तो करोगे ना, ज्वाइन करोगे तभी पता चलेगा कि कोलिनियर है या नहीं है. ज्वाइन करना पड़ेगा. Yes, done. This is the sub question 2. I hope all of you are done. So this will also be collinear. Okay. The sub question 3 and the sub question 4, I give it to you for homework. You can do that. Same method. Just you have to check whether they are collinear or not. So after showing मतलब ये collinear है तो उसके बाद लिखना है कुछ. Please a little louder, Heath. I can't hear So you. after मतलब अगर हम लोग ने अभी बता दिया कि ये लाइन ज्वाइन हो रहा है तो अभी ये collinear है. So we have to write any statement after it. Yes, you have to write a statement here that therefore the points P, Q and R are collinear. ठीक है. यहाँ जहाँ पे point mark किया है ना वहां पे भी लिखो this is point P, this is Q and this is R. and उनके coordinates भी लिखो. Q के coordinates क्या है 2, 1. R के coordinates है 8, 4. ऐसा सब चीज. अभी क्या है आप सेम ग्राफ में अगर 3-4 क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा ऐसा क्लमजी लगेगा. बट जब एग्जाम में आप एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब डेटा लिखना पड़ेगा. एंड इट विल लुक गुड आल्सो. Okay, so let's do the question number 6 now. Question number 6.
Now, listen carefully. In the sixth question, they have said, plot the points A 3,0 and B 8,5. So point A है 3,0, ठीक है, 3,0 है, x की वैल्यू 3 है, y 0 है. y अगर 0 है तो पॉइंट x के ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा. x की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू 3 कहाँ पे होती है? यहाँ पे. और y तो 0 है, y तो है ही नहीं, तो यही आपका पॉइंट है A. This is your point A. This is your point A. Then B is 8,5. B is 8,5. तो 8 कहाँ पे है? यहाँ पे. एंड 5 कहाँ पे होगा? 4 और 6 के बीच में. 5, 8. So here is your line 8,5. Done? मार्क कर दिए 2 पॉइंट्स Yes, A and B. sir. अब अगर आपने मार्क कर दिया है 2 पॉइंट्स A and B, now using a scale, join these 2 points AB. This is the point B. Join these 2 points AB. ओके, थोड़ा एक्सटेंड कर देना इसको, चाहिए तो यहां तक एक्सटेंड कर दो. Done? So now you have plotted the points AB and you have joined the line AB also. ठीक है. अब क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनो. If points C, that is 2, P, point C है 2, P and point D Q, 1 lie on the line AB. These 2 points lie on the line AB. ये जो लाइन AB है ना, इसके ऊपर ये पॉइंट्स लाई करते हैं. ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. अब आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर ये पॉइंट्स लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? लिसन केयरफुली. ये पॉइंट C की वैल्यू क्या दी है? 2, P. ये 2 क्या है? 2. दिस 2 इज x, वैल्यू ऑफ x. ओके, तो मतलब x की वैल्यू 2 कहां पे है? यहाँ पे. ओके, तो यहां से 2 से ये जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर एक लाइन बनाओ. लाइन नहीं भी बनाओगे तो एटलीस्ट खाली उसे ट्रेस करो. ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगी? इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को लेके जाओ, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है. ओके, इट कट्स हियर. सो ये है आपका पॉइंट C. क्या किया मैंने? x की वैल्यू 2 थी, तो x की वैल्यू 2 का है यहाँ पे, तो वहां से सीधा लाइन के ऊपर, ये जो हमारी मेन लाइन है AB, उसके ऊपर ट्रेस किया उसको, तो मुझे पॉइंट क्या मिला? ये, तो जिसमें x की वैल्यू है 2. अब इसी पॉइंट की यू चेक, इस पॉइंट की y की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट के y की वैल्यू क्या है? आप चेक करके बताओ. 1. -1. -1 आएगा. Yes. करेक्ट है? सबको आ रहा है -1? Yes. Yes, sir. सो ये आएगा -1. इसका मतलब ये जो P है ना, यहाँ पे P, इस P की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ P इज -1, क्योंकि हमें y क्या मिला? -1.
समझ में आ रहा है? अभी डी Sir, can you repeat? सी व्हाट आई डिड इज, ये जो सी पॉइंट है 2, p, तो ये 2 क्या है, x है, तो x एक्सिस पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वहां से 2 से हमारे इस लाइन ए बी के ऊपर कट किया, तो जो पॉइंट मिला वही आपका पॉइंट सी है, और फिर सी पॉइंट से आपने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नाउ d, अब d में x तो नहीं दिया है लेकिन y दिया है 1, करेक्ट, y की वैल्यू 1 दी है, तो y की वैल्यू 1 कहां पे होती है, इट इज हियर। तो अभी यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और हमारे मेन लाइन को कट करो, मेन लाइन को, लाइक दिस। कहां पे कट हुआ, ये इधर कट हुआ, 4 sir. ओके, तो दिस इज योर पॉइंट डी, जिसके y की वैल्यू है 1, बट इसके x की वैल्यू क्या है, नीचे ट्रेस करो इसको, इसके x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिलेगी, तो मतलब दिस पॉइंट D इज 4, 1, तो आपको Q क्या मिला, Q विल बी 4, x की वैल्यू 4 मिली ना, और x वाज अननोन, x वाज Q, सो Q मिल गया 4। समझ में आया? सर मुझे पूछना था, इसके बाद कुछ और पॉइंट भी लिखना है। क्या इसके बाद नहीं, सिर्फ प्योर Q की वैल्यू लिखो, दैट्स इट। सर 4 कैसे आया? ये D पॉइंट मिला ना, इस D पॉइंट के, ये D पॉइंट का x की वैल्यू क्या है वो चेक करो, x की वैल्यू, y तो हमें पता था, y से हमने इसको ट्रेस किया, इसकी x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 4 होगी। ओके, अंडरस्टूड? So now you can do the seventh sum, same sum, seventh sum भी same है। सेवन सम में क्या पॉइंट्स है, P is -2, 4, so x is -2, y is 4, so पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, ये मिलेगा पॉइंट -2, 4, -2x, y 4, then Q is 4, 1, 4, 1, ओके, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो 4, 1 मतलब यहाँ पे, दिस इज Q। Now join these 2 points, P and Q. ज्वाइन करो इनको, तो अब क्या करेंगे, R, पहले R पॉइंट इस पे ट्रेस करेंगे, कैसे मिलेगा R पॉइंट, X तो अननोन है बट Y की वैल्यू 3 है, ओके, Y की वैल्यू 3 है, तो Y 3 कहाँ पे है, Y 3 है यहाँ पे, तो आई गेस एग्जैक्टली आपको यही पॉइंट मिलेगा, Y की वैल्यू 3 यहाँ पे है ना, और Yes, वो sir. ऑलरेडी लाइन से पास ही हो रहा है, समझ रहा है, Yes, sir. और कहीं पे अगर वैल्यू होती तो मैं उसको लाइन के ऊपर ट्रेस करता, बट ये तो ऑलरेडी लाइन के ऊपर ही है, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट R।
तो इस पॉइंट R के x की वैल्यू क्या है? x 0. कोऑर्डिनेट 0. 0. दिस पॉइंट R इज ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी x की वैल्यू क्या है? 0. 0. x is 0, y is 3. So a की वैल्यू क्या मिल गई? 0. The other point is 2, b. So x is 2. तो x 2 कहाँ पे है? यहाँ पे. तो x 2 से ऊपर लेके जाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे आ रहा है. तो y क्या मिल रहा है इस पॉइंट के लिए? 2. y भी 2 मिल रहा है. So 2. Yes. y भी 2 मिल रहा है, तो b की वैल्यू होगी 2. सर एस का पॉइंट कैसे मिला एक बार समझाओ. सर एस का पॉइंट कैसे मिला एक बार समझाओ. Yes, hello. सर एस का पॉइंट कैसे मिला एक बार समझाओ. s पॉइंट दिया है 2, b. तो ये 2 क्या है? x की वैल्यू है. तो x एक्सिस पे 2 कहाँ है? यहाँ पे. तो ये जिस 2 को हमने लाइन के ऊपर लेके गए, हर पॉइंट को लाइन के ऊपर लेके जाते हैं, और फिर पॉइंट को मार्क कर दिया. अब इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है? तो y के ऊपर इसको ट्रेस करो, तो y मिल रहा है 2. मींस इसके b की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2. ओके सर. Done? Yes, everybody done? So we can start with the next exercise. यस सर. दो घंटे का क्लास है, उसमें भी तेरे को बक बक करनी है. पता है तेरे को आधा घंटा ही हुआ है अभी तक, उसमें निकाल दिया तुम. Sachi, if you are talking to someone, keep yourself mute. Okay, next. Exercise 21B. Now, this is a very different kind of exercise where you will learn how to solve two simultaneous equations graphically. See, we have done in the 4th or the 5th chapter, I think we have done simultaneous equations, simultaneous linear equations. And we have learned how using the two equations we can find the value of x and y. उनको हम या तो add करते हैं या तो subtract करते हैं. ठीक है, coefficients के value को same करते हैं, add subtract करते हैं और equations का answer find करते हैं. लेकिन हम graphically भी ये चीज कर सकते हैं. Graphically, तो कैसे कर सकते हैं graphically? Let's understand. First of all, आपको दो first question number 1 लेते हैं. Question number 1 first. क्या इक्वेशन है? x minus 2y plus 3 equals 0.
ये एक इक्वेशन है एंड नेक्स्ट इक्वेशन है, ये आप जो ग्राफ पेपर में, आपके जो ग्राफ पेपर है उसके जो राइट साइड का पेज होता है जहां पे राइटिंग वर्क कर सकते हैं, वहां पे आप ये करना, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ग्राफ बनाना। एंड दूसरा इक्वेशन है 2x plus y equals 40. These are the two equations. Now, how to plot this equation on the graph paper? मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में मैं इस इक्वेशन को प्लॉट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को, तो मुझे पहले इस इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। कैसी वैल्यूज, कैसे फाइंड करते हैं? सी दिस, मेक अ टेबल लाइक दिस। चार कॉलम्स होने चाहिए, 2 रोज होने चाहिए। इनफैक्ट 3 रोज बना दो और बेटर होगा। This is x, y, x, y. बना दिया इतना। अभी क्या करना है, सम में क्या सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, ये आपके पास क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, इस माइनस 2y को राइट हैंड साइड भेज दो, ये प्लस 3 को भी राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3। ओके, तो x सब्जेक्ट बन गया। अभी आपको करना क्या है, यू हैव टू अज्यूम द वैल्यूज ऑफ एनी वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करना है, ठीक है। जैसे समझो मैंने y को किया, अगर मैं y को 0 लूंगा, 0, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर मैंने y को 0 लिया, तो इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 लूंगा, तो मुझे x क्या मिलेगा? 1। वेरी गुड। 2 0 2 होता है, 2 into 0 0 होता है, तो मिलेगा x माइनस 3। 3। तो x क्या मिला? -3। तो टेबल में फिल करना है वो कि आपने जब y को 0 पुट किया तो आपको x क्या मिला? -3। ओके, अब एक काम करते हैं, दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। 3 बार करना पड़ता है इसे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1। एक्सक्यूज मी सर, तो आप वापस एक्सप्लेन करोगे प्लीज? क्या एक्सप्लेन करूँ वापस? ये जो इक्वेशन था ना, ये एक्चुअली सर मैंने ये सब में लॉग आउट हो चुकी थी, मैं लॉग आउट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैंने कुछ सुना नहीं। सुनो अभी सब्जेक्ट बनाना है, इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये x इक्वल्स टू ऐसा बन गया। अब यहाँ पे मुझे अज्यूम करनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मैं अज्यूम करूंगा, समझो 0। तो अगर मैंने यहाँ पे y को 0 लिया, तो 2 into 0 0 -3, so 0 minus 3 is -3, मुझे x मिला -3। तो जब y को 0 लिया तो x मिला -3। तो इस टेबल बनाएंगे इसे x y x, y। तो x y को 0 लिया तो x मिला -3। तो सर जो भी वेरिएबल मिलेगा उसमें हमेशा हमें 0 ही पुट करना है, अज्यूम करना है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, ठीक है। 0 एक सिंपल वैल्यू होती है, तो 0 को हमेशा पॉसिबल हो तो हमेशा यूज किया करो। अब देखो सेकंड के लिए मैं 1 लेता हूँ, y को 1 लिया। अगर इस इक्वेशन में y को 1 लेंगे तो 2 into 1 -3 आएगा, तो 2 1s are 2 -3, आंसर क्या आया? -1। तो जब मैंने y को 1 लिया तो मुझे x क्या मिला? -1।
ठीक है, Sir, आपको जो चाहिए आप वो वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 10, 20, 30 मत लेना, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे उतना प्लॉट नहीं कर सकते। ग्राफ पेपर पे हम 2, 3 तो वो सिंपल वैल्यूज लेनी पड़ती है। तो y को 1 लिया तो मुझे x क्या मिला, -1। ओके, तो दो वैल्यूज हो गई मेरी, एक और लेना है। तो और कुछ आप सोचो कि क्या ले सकते हो। समझो मैंने y को लिया 2। ओके, ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर सम, ये वर्किंग भी आपके सम का पार्ट है। ठीक है, आपने y को 2 लिया तो x विल बी 2 into 2 minus 3, so x is 4 minus 3, x is 1। तो जब आपने y को 2 लिया तो आपको x मिला 1। ओके, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि हमेशा y की ही वैल्यू पुट करो, आप x की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। आप x को भी अज्यूम कर सकते हो, y को भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे कैसे और चीजें भी यूज होती है। ओके, अगर समझो किसी दो लोगों को अलग अलग पॉइंट्स लिए किसी ने, ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 लिया y की वैल्यू, किसी ने अगर एक -1 लिया होता तो उसको कुछ अलग पॉइंट मिलता, बट फाइनल आंसर सेम ही आएगा। Even if your points are different, the final answer which you get will be same. Okay, provided you do the calculation correct, you don't make a mistake here. Okay, so ये तीनों पॉइंट्स आ गए टेबल, तो इसको मैं लिख देता हूँ x, y, मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, दिस पॉइंट इज -3, 0, दिस पॉइंट इज -1, 1 एंड दिस पॉइंट इज 1, 2। इतना हुआ, इतना किया सबने। Yes, done. yes, sir. Yes, sir. So now let's solve for the second equation. Second equation के लिए भी सेम चीज करनी है। Second equation क्या था, 2x plus y equals 14। अब समझ लो ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, 4 मार्क मिलेंगे जब आपको पूरा, अब तक तो प्लॉटिंग बाकी है। ओके, तो 4 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं ये वाले, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें। तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ वर्किंग। Now this is my equation, 2x plus y equals 14। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है आप बना सकते हो, किसको भी, बट बेटर होता है, अभी y सिंगल है ना, y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये 2x को यहाँ भेज दो तो y सब्जेक्ट बन जाएगा इजीली। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि वो एक तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरे तरफ, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, सो आपने बना दिया y is equal to 14 minus 2x। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाता हूं इसके लिए भी। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब देखना, अभी मुझे x की वैल्यू अज्यूम करनी है। ठीक है, मैं x की जगह पे पुट करूंगा ना अभी इस बार, क्योंकि y सब्जेक्ट है, तो मैं x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो अगर समझो मैंने x को, जैसे पिछली बार मैंने 0 लिया था, वैसे मैंने समझो फर्स्ट वैल्यू x की ली 0। ओके, डोंट कॉपी, जस्ट लिसन। मैंने अगर x की वैल्यू 0 ली तो मुझे क्या मिलेगा पॉइंट, 14 minus 2 into 0, so 2 into 0 is 0, so 14 minus 0 मुझे आंसर मिलेगा y की वैल्यू 14 मिला y की वैल्यू। बट क्या आप 14 प्लॉट कर पाओगे ग्राफ पेपर में? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लॉट 14 ऑन द ग्राफ पेपर, करेक्ट, बिकॉज ग्राफ पेपर में मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस पे 10 तक जाती है, या कभी कभी 12, उससे ऊपर तो नहीं जाती। तो आपको क्या करना है, आप ये वैल्यू मत लो, बिकॉज ये आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, तो लेके कोई फायदा नहीं है, आपको वापस चेंज करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, you should realize this, that the values of x and y should be in a particular range। 8 के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए वैल्यूज। ओके, कुछ ऐसा ही सोचना है। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, आप ओरली भी कर सकते हो दिमाग में। ओके, समझो मैंने x को भी अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू लेता हूँ,
बिकॉज यहाँ पे सबट्रैक्ट होने वाला है ना. समझो मैंने x को लिया 3, तो यहाँ पे y क्या मिलेगा? 14 minus 6, 8 मिला y. Yes, sir. करेक्ट. तो जब मैंने x को 3 लिया तो y मुझे 8 मिला. बात जा रही है दिमाग में? Yes. sir. Yes, sir. तो y मिल गया 8. अभी एक और बड़ी वैल्यू लेता हूँ. फॉर समझो x इक्वल्स 4, x को 4 ले लेते हैं. तो क्या मिलेगा y? 14 माइनस 2 इंटू 4, सो 14 माइनस 8, तो y क्या मिला? 6. तो जब x को 4 लिया तो y मिला 6. सर ऐसे सम में ठीक एक है. ग्राफ अभी मैं ये सबको बहुत स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. अगर आप एक प्रॉपर पेस में सॉल्व करोगे ना तो 10 मिनट में हो जाता है एक सम. ठीक है, 10 मिनट में हो जाता है. मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ बिकॉज इट इज द फर्स्ट सम. अभी x को क्या लेते हैं? x को 5 ले लेते हैं. फॉर x इक्वल्स 5, तो y क्या मिलेगा? 14 माइनस 2 इंटू 5, दैट इज 14 माइनस 10, दैट इज 4. जब मैंने x को 5 लिया तो y मिला 4. तो मेरे 3 पॉइंट्स क्या आ गए? 3,8, 4,6, 5,4. These are my 3 points. Done? I'll erase the working there. सर ग्राफ यूज करते हैं. ग्राफ पेपर पे x एक्सिस. यस. सर इसमें एक सम एक ग्राफ पे होता है क्या? बेटर होगा एक सम को एक ही ग्राफ पे करो, क्योंकि क्या ये सब वर्किंग भी करनी पड़ती है ना. अगर आप एक ग्राफ पे 2 सम करोगे तो आपको वर्किंग फिट करनी पड़ेगी राइट साइड. अगर फिट होता है तो ठीक है, आपके ऊपर है. मैं आपको क्यों कहता हूँ एक ग्राफ पेपर पे एक सम करो, सो दैट ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वापस बनाने में, ग्राफ पेपर वेस्ट ना हो, इसीलिए. अदरवाइज आप हर एक सम के लिए एक ग्राफ करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बार बार आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा. वही सर वही अगर फिट होता है वर्किंग तो कर लो. ओके. So don't, now these two tables are important. Now they will help us in the graph. This working का काम हो गया अभी. ठीक है. ओके. नंबर्स बन गए. अब पहले ये वाली लाइन को मैं प्लॉट करता हूं. इसमें लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं? ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 3 पॉइंट्स जो मिले हैं आपको, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करो. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करो. तो फर्स्ट पॉइंट है -3,0. तो x की वैल्यू -3 है, y इज 0. ये मुझे मिला फर्स्ट पॉइंट.
सेकेंड -1, 1, तो x इज -1, y इज 1, तो ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे। देन 1, 2, x इज 1, y इज 2, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 1 है, y 2 है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। Now, using the scale, join these 3 points. Join these 3 points. ऐसे थोड़ा बड़ा लाइन बनाना, पूरा ग्राफ पेपर को थोड़ा कवर करो, बड़ी लाइन बनाओ। Sir, Yes, sir, actually, why do we extend the line? you'll come to know now when I plot the second line. ठीक है, और ये लाइन आपने जहाँ पे बनाई ना, इसको एक्सटेंड किया ना, तो इस लाइन के ऊपर आपको इसका नाम लिखना है। ये कौन सी लाइन आपने प्लॉट की है? आपने ये वाला इक्वेशन प्लॉट किया है, x - 2y + 3, तो यहाँ पे लिख दो ये कौन सा इक्वेशन है, x - 2y + 3, तो याद रहेगा ये कौन सी लाइन थी, x - 2y + 3। अब ये होने के बाद, ये लाइन आपकी बनने के बाद, प्लॉट दीज पॉइंट्स, सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करना है। 3, 8, ओके, x is 3, y is 8, तो कुछ यहाँ मिलेगा पॉइंट आई गेस। सी मेरा अभी ग्राफ एक्यूरेट नहीं है बिकॉज मैं रफली कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोगों को एकदम एक्यूरेटली करना है सब कुछ। 4, 6, x को 4 लिया है, y is 6। 5, 4, x is 4, x is 5, y is 4, so somewhere here। ऐसे 3 पॉइंट्स आएंगे। नाउ जॉइन दीज 3 ऑल्सो। I'll also join using a scale so that the drawing looks good. सर हम लोग का जो 5-4 पॉइंट वो ग्राफ पे है ना, एग्जैक्टली वो लाइन को टच कर रहा है। कौन सा पॉइंट? सर 5-4 वाला, वो जो लाइन है ना x। अच्छा हाँ, 5, 4, ये जहाँ पे 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आ रहा है वो। यस सर। Sir, हाँ ना, हाँ तो वो मेरा थोड़ा एक्यूरेसी कम है, सही आ रहा है मतलब आपको 5, 4 ना, तो ये जो 5, 4 वाला पॉइंट है ये आपको इधर आएगा। करेक्ट, सबको आ रहा है ऐसा? यस सर। अब देखो इसीलिए मैंने लाइन को एक्सटेंड करने बोला, एक लाइन यहाँ एक्सटेंड हुई, एक लाइन इधर एक्सटेंड हुई, जब वो एक्सटेंड हो गए तभी वो मीट हो पाएंगे, हमें उनको मीट करवाना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मीट हुई, ये वाले पॉइंट पे मीट हुई। ठीक है, अभी कोइंसिडेंस ऐसा था कि ये पॉइंट ऑलरेडी आपको पता था 5, 4 है, अगर आपको नहीं पता होता तो आपको चेक करना है ये पॉइंट कौन सा है, तो इसकी x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 4, सो दिस पॉइंट इज 5, 4, so this is your answer for the question 5, 4। और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन बनाई है ना, इसके ऊपर लिखो इसका नाम, ये कौन सा इक्वेशन था, 2x + y = 14। ओके, ये आपको आंसर मिल गया। ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। अभी भी स्केल लिखना बाकी है, स्केल तो आपको लिखना ही होता है। 2 सेंटीमीटर is 2 units on x-axis and y-axis, दोनों पे सेम ही है।
सर ये स्केल प्रीवियस सम्स में नहीं बनाई थी, तो मतलब ये सेम ही हर जगह लिखने का है ना? बनाना था, यस यस। और ऐसे ओके क्योंकि इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते तो हमेशा स्केल सेम होगी, हम्म। 2 सेंटीमीटर इज 2 यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस। सर वर्किंग में क्या लिखना है? आंसर 5,4। हाँ बस खाली सोल्यूशन लिख दो ऐसा, सोल्यूशन इज 5,4 बस। अभी अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ऊपर नीचे रख के इक्वेशन को, वेरिएबल को सेम करके, तो आपको यही आंसर आता 5,4। x की वैल्यू 5 आती, y की वैल्यू 4 आती, सेम। ओके, जस्ट कंप्लीट द ग्राफ, फिर हम एक और सम करते हैं। Okay, let's do the next sum. सर अगर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होता है, दोनों लाइंस, तो फिर क्या करना पड़ता? तो आपको सम को वापस सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इंटरसेक्ट तो होना ही चाहिए। इंटरसेक्ट होना ही चाहिए, हमेशा होगा ही इंटरसेक्ट। यस 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 साची। सी आप चाहिए तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचा है एग्जाम में, तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो रफ में, और उसका आंसर चेक भी कर सकते हो, सेम आएगा। सब तैयारी कर दो वापस, टेबल बना के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के नेक्स्ट सम के लिए। चलो फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो एक को सब्जेक्ट बनाना है, तो आई विल मेक y द सब्जेक्ट। मैं y को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, 4 को यहाँ लिख आता हूँ। 2x माइनस 4 इक्वल्स y, ठीक है। और अब अभी x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करूँ x की वैल्यू? पहले 0 ले लेता हूँ, x इज 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो y क्या मिलेगा? y मिला -4। जब x को 0 लिया तो y मिला -4। फिर x को 1 ले लेते हैं, तो जब x को 1 लिया तो y मिला -2।
आप चाहिए तो खुद दूसरा खुद का सोच के पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x को -1 लेके भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं x को 2 लेता हूँ, तो x को 2 लेंगे तो क्या होगा 4 - 4, तो y मिलेगा 0, y मिल गया 0। x को 2 लिया तो y मिला 0। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। ओके, यस नेत्रा। सर बाय मिस्टेक हुआ, सॉरी। देन ये 3 पॉइंट्स मिलने के बाद यहाँ पे लिख दो ये तीनों पॉइंट्स 1, -2, 2, 0। फिर अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसके पॉइंट्स लिखेंगे। x - y = 1। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसके पॉइंट्स भी इजीली मिल जाएंगे। x - y = 1, so x = y + 1 बना लो इसको, माइनस y को यहाँ भेज दो, ठीक है, तो प्लस y बन जाएगा 1 + y। अब क्या करेंगे, y को ले लो 0 पहले एक बार, y को 0 लोगे तो x क्या मिलेगा 1 + 0 दैट इज 0। तो जब आपने y को 0 लिया तो x भी 0 मिला, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपने y को 0 लिया, x भी 0 मिला, चलेगा, बिकॉज 0, 0 भी तो एक पॉइंट होता है। 0, 0 इज ओरिजिन, ओरिजिन भी एक पॉइंट होता है, नो प्रॉब्लम। देन टेक y as 1, सर 1 + 0 y को 1 1 लेंगे तो x क्या मिलेगा 2, y को 1 लिया तो x मिला 2। सर 1 + 0 1 होता है। 1 + 0 1 है, वेरी सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे जब y को 0 लिया तो x 1 है। चलो, इससे हमें ये भी मालूम पड़ गया कि अगर 0, 0 आया, ठीक है, तो वो भी करेक्ट ही होता है आंसर, याद रखना, ठीक है। तो y को 1 लिया तो हमें x क्या मिला 2, y को 2 ले लेते, ठीक है। यहाँ देखो y को मैं पर्पसली -1 लेता हूँ, y को माइनस नेगेटिव वैल्यू भी लेके दिखाता हूँ आपको। तो y को -1 लिया, ये जो इक्वेशन है x is 1 + -1, so x is 1 - 1, x is 0। तो देखो y को -1 लिया तो x मिला 0। ये तीन वैल्यूज दिए ना मैंने, फॉर y = 0, फॉर y = 1, फॉर y = -1। नाउ माय टेबल्स आर रेडी। 1, 0, 2, 1, 0, -1। Now, once you have the equations ready, let's plot the graph. प्लॉट करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। 0, -4, सो x तो 0 है, y is -4, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, -4। then 1, -2, x is 1, y is -2,
सो ये y का -2, ये x का 1, तो यहाँ पे पॉइंट होगा x और ये y। देन थर्ड है 2, 0, x की वैल्यू 2 है, y तो 0 है, तो x 2 के ऊपर ही पॉइंट आएगा। एंड देन इन तीनों को ज्वाइन करो। तीनों को ज्वाइन करना, अच्छे से ज्वाइन करना थोड़ा। और यहाँ पे लिख देना ये कौन सी लाइन है, 2x - y = 4। देन प्लॉट द सेकेंड लाइन, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो 1, 0, 1, 0 मतलब x पे 1 ही होगा वैल्यू, ये एक पॉइंट आएगा 1, 0, 2, 1, सो x is 2, y is 1, x is 2, y is 1, so point will be somewhere here. Then 0, -1, 0, -1, तो x is 0, y की वैल्यू -1 है, मतलब इधर। Now join these points. कुछ ऐसे आएगी लाइन, and they will meet at one point. 3,2. 3,2. Okay, थोड़ा मेरे ग्राफ में ऊपर नीचे आएगा, but you will get the value as x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. This will be your answer. 3, 2, your solution. Done? Yes, sir. Now all the remaining sums are like this only. सारे sums जो 3, 4, 5 सब है ना, सब ऐसे ही sums है. Okay. खाली प्रॉब्लम क्या आएगी अभी कि जो वैल्यूज आप पुट करते हो ना, वैल्यूज वो थोड़ा केयरफुली पुट करना पड़ेगा. ओके मतलब वैल्यूज पुट करते वक्त कभी कभी डेसिमल में आ जाएगा. ठीक है, अगर डेसिमल में आएगा तो क्या करेंगे, जैसे समझो आपने x की वैल्यू 1 ली एंड यू आर गेटिंग y एज 2.5, तो ठीक है आप 2.5 यूज भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. 2.5 लेकिन प्लॉट कैसे करोगे, आपको केयरफुली प्लॉट करना पड़ेगा. 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट आएगा 2.5. ओके तो आप
फिर भी पॉसिबल है प्लॉट करना 2.5, लेकिन अगर आपको 2.2 आया तो आप पॉइंट चेंज कर दो, 2.2 एक्यूरेटली प्लॉट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर 0.5 तक का प्लॉटिंग आप कर सकते हो, बट 0.5 के अदरवाइज अगर कोई डेसिमल वैल्यू आ रही है तो वो आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ट्रायल एंड एरर करते रहना है, कुछ ना कुछ डिविजिबिलिटी ढूंढते रहना है। मैं आपको एक और थोड़ा बड़े नंबर्स वाला सम करके दिखाता हूँ, पूरा सम नहीं करेंगे, मैं आपको टेबल प्लॉट करके देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 4। आई होप ये सबका कंप्लीट हो चुका है। दिस सम इज डन। क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 4, जो इक्वेशंस की वैल्यू है वो बड़ी है, 2x - 7 = 6। -7y = 6। ठीक है, तो अभी 2x - 7y = 6। ठीक है, तो इस -7y को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, आई विल गेट 2x = 6 + 7y। ओके, अभी भी x अकेला नहीं है, x के साथ एक नंबर है, x के साथ ही नंबर है, तो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, x is 6 + 7y / 2। सब्जेक्ट बनाया ना मैंने, x को सब्जेक्ट बनाना मतलब x के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। अब वैल्यूज अज्यूम करते हैं फॉर y इक्वल्स। ठीक है, ध्यान से वैल्यू अज्यूम करना है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते, अभी थोड़ा समझना पड़ेगा हमें सम को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 0 ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले 0 ट्राई करो। ओके, तो हम लेते हैं y को 0, तो समझो y को 0, तो x क्या मिलेगा, 6 + 7 × 0 / 2। So x is 7 × 0 0 हो गया, तो 6 / 2, तो y क्या मिला, 3। मतलब चल रहा है, पॉइंट प्रॉपर है, y को 0 लिया, x मिला 3। नेक्स्ट क्या पॉइंट ले सकते हैं, कोई सजेस्ट करेगा? So 1, क्या लूं, y को 1, चलो ठीक है, नहीं y सर, को सर 1 डेसिमल में आएगा, नहीं होगा। सर डेसिमल में आएगा। यस, डेसिमल में आएगा, करेक्ट। तो कोई ऐसा पॉइंट सजेस्ट कर सकता है कोई जो डेसिमल में नहीं आएगा? सर 2, सर सर 2, 14 + 6 20/2 10। करेक्ट, चलो ये पॉइंट भी ले ही लेते हैं, लेकिन डेसिमल वाला पॉइंट भी आना चाहिए, हमें थोड़ा सीखना चाहिए। तो 6 + 7 आएगा 13/2, 13/2 is 6.5। मैंने कहा है 0.5 तक की वैल्यूज आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो हमने ले लिया x - x is 6.5, तो y को 1 लिया, तो x मिला 6.5। सर ठीक है, अगर आपको नहीं जमता है पॉइंट वाला, आप दूसरा कोई लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लेता हूँ अगर y को, कोई 0.5 के अलावा कोई और नंबर आता है लाइक 0.2 या 0.3 तो पॉसिबल तो नहीं है। मत लो, तुम तो चेंज करो पॉइंट को, तो चेंज करो, बिकॉज क्या फिर वो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैं लेता हूँ y को, किसने क्या कहा था, 2 कहा था ना, हाँ y को 2 लेते, तो x = 6 + 7 × 2 / 2, so 6 + 14 / 2, that is 20/2, तो x मिल रहा है 10, तो x 10 मिल रहा है जब मैंने y को 2 लिया। मेक श्योर यू हैव 10 ऑन योर x एक्सिस। ओके, 10 होना चाहिए x एक्सिस में। अब इस 2 से मुझे एक और हिंट मिलेगी, अगर ये 2 है यहाँ पे, तो अगर मैं -2 ले लूं, अगर मैं y को -2 लूं, तो भी मुझे एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। ऑल्दो मेरे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं अभी, बट एक -2 के लिए बता दो आपको, अगर मैंने y को -2 लिया, तो आपको इतना तो पता है डेसिमल नहीं आ रहा है ना, तो y को -2 लेके देखते हैं। x +
7 into minus 2 upon 2. So 7 into minus 2 is minus 14 upon 2. 6 minus 14 is -8. minus 8 upon 2. That is minus 4. ये भी देखो सही पॉइंट आ रहा है. x को minus 2 लिया तो सॉरी x को नहीं y को minus 2 लिया तो x minus 4 आया. तो अगर किसी को ये पॉइंट नहीं जम रहा 1 और 6.5 तो वो ये भी ले सकता है. ऐसे n नंबर ऑफ पॉइंट्स बनते हैं. सी रिमेंबर एक लाइन जो होती है ना उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. आपको इनफाइनाइट मिल सकता है ये टेबल की वैल्यूज. ठीक है, इसलिए मैंने कहा किसी को कोई दूसरी वैल्यू भी मिल सकती है बट लाइन सेम ही बनेगी. सर एग्जाम में वो लोग ग्राफ पेपर सेकंड इक्वेशन क्या है? 5x minus 8y equals minus 4. ये इरेज कर दो. तो इक्वेशन है 5x minus 8y equals minus 4. तो अब ये 8y को यहाँ पे लाऊंगा तो प्लस 8y बन जाएगा और माइनस 4 है. अब इस 5 को यहाँ पे नीचे लेके आते हैं. डिवाइड बाय 5 है अभी. डिवाइड बाय 5 बहुत ध्यान से नंबर्स लेने पड़ेंगे. ओके तो कोई सजेस्ट करो क्या नंबर लेंगे? 3. 3. ओके वेरी गुड. y को अगर मैं 3 लूंगा तो x विल बी 8 into 3 minus 4 upon 5. 8 3 जा 24 होता है minus 4 upon 5. So 24 minus 4 is 20 upon 5. आंसर आया 4. वेरी गुड. एकदम परफेक्ट नंबर था ये. y को 3 लिया तो x मिला 4. और कोई नंबर? सर -2. -2. yes correct. y is -2 लेते y को तो 8x will be equal to 8 into -2 minus 4 upon 5. 8 into -2 is -16 minus 4 upon 5. So this is -20 upon 5. That is -4. तो जब y को -2 लिया तो x मिला -4. और क्या ले सकते हैं? टेंशन मत लो. देखो आप लोगों को एक दो नंबर्स आप ट्राई करोगे उसमें पॉइंट में आएगा तो ठीक है. इट हैपेंस. इसका ये सम करने का पर्पस ही वो होता है. ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है इसमें. ठीक है, ट्रायल एंड एरर करके ही आपको नंबर्स मिलते हैं इसमें. और अगर 0.5 का डेसिमल मिल रहा है तो इट इज ओके. ओके मैंने कहा था कि 0.5 का डेसिमल चलेगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ और नंबर हम सोचते हैं.
Sir, -7. Yes. For y equals -7. So थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे. I'll do it here. ऊपर ही करता हूँ मैं यहाँ पे. 8y - 4/5 ना. For y equals -7. तो x is 8 into -7 minus 4/5. 8 into -7 is -56 minus 4/5. -56 minus 4 is -60/5. लेकिन इसमें आंसर -12 आ रहा है. -12 आ रहा है x. सर लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं है फिर. ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था x की वैल्यू -12 मिल रही थी. तो अभी क्या करें, कुछ और पॉइंट ले लें यहाँ पे. क्या x को y को -3 ले, तो -3 ले तो क्या होगा, -24 -4. सर वो -28 बन जाएगा. तो -28/5 5.6 आ जाएगा. -12 आ रहा है क्या ग्राफ पेपर में? देखो जरा आप लोगों को मिल रहा है क्या? नो सर. नो सर. 10 तक ही होगा ना, आई गेस 10 तक ही आ रहा होगा. यस सर. 4 6 8 10 तक ही आता है. -12 नहीं आएगा. तो एक काम करो, तो टेंशन की बात नहीं है, हम प्लॉट कर देंगे. अब एक काम करो, -3 ले लो y को. -3 ले लो, मैं बता दो कैसे प्लॉट करना है. तो ये -24 -4/5 -28/5, इसका आंसर आपको आएगा -5.6. -5.6 मिलेगा. जब आप y को -3 लोगे तो -5.6. ओके, हो गया ये. अभी 5.6 को प्लॉट कैसे करोगे? हाँ, ये देखो, मतलब क्या होगा पता है, अगर आपने ये 5.6 लिया तो भाई प्लॉटिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान देना है. प्लॉट करते वक्त अगर ध्यान दे दिया तो ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा. राइट, कोई टेंशन की बात नहीं है. आंसर जो होता है ना, हमेशा रिमेंबर वन थिंग, आंसर इज ऑलवेज इन इंटीजर्स.
आंसर कभी पॉइंट में नहीं आता। ओके, तो समझो आपने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, दोनों लाइंस आपने मार्क कर दिए ऐसे। ओके, आपकी दोनों लाइंस यहाँ पे मीट हो रही है, और मीट करने के बाद आप जब इसको ट्रेस कर रहे हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग x इज 2.1, बट याद रखना वो 2.1 नहीं होगा, वो 2 ही होगा। ओके, क्योंकि आपने थोड़ा सा डेसिमल में यहाँ वहां किया है, तो आपकी लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई होगी। ओके, बट आंसर हमेशा इंटीजर्स ही होता है। अगर आपको यहाँ पे y की वैल्यू 2.9 आ रही है, तो अंडरस्टैंड इट इज 3 ओनली, राउंड ऑफ कर देना उसको, क्योंकि वही आंसर होता है। ओके, तो अभी आप लोग ग्राफ पेपर में ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट भी कर दो, कंप्लीट ही कर दो। अभी ये सम जब इतना कर लिया है, तो ये पॉइंट्स मिल रहे 3,0, 6.5, 1 एंड 10,2, 4,3, -4, -2, -5.6,3। अभी प्लॉट कर दे नंबर्स को, x is 3, y is 0, तो इधर आएगा एक पॉइंट 6.5 और 1, x 6.5 कैसे प्लॉट करोगे? 6 और 8 के बीच में 7 होगा, 6 और 8 के बीच में 7, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में 7, 5 छोटे बॉक्सेस, 5 छोटे बॉक्सेस काउंट करोगे तो, और 6 और 7 के एग्जैक्टली बीच में होगा 6.5। करना पड़ेगा, 6 एंड 7 के बीच में एग्जैक्टली आपको आएगा 6.5, ठीक है, और y क्या है? 1। सर बोलो बोलो। लेकिन बॉक्सेस के लाइंस को काउंट करना है कि बॉक्सेस को काउंट करना है? सर मतलब थर्ड बॉक्स पे आएगा ऐसा कुछ, क्योंकि 2 ये साइड हाँ, थर्ड बॉक्स पे आएगा। देखो मैं थोड़ा So we मैग्नीफाई can करके use a scale, ना? हाँ, यू कैन यूज अ स्केल, बिंदास। कुछ ऐसा है आपका ये बॉक्स, ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये अगर आपका 6 है, ये अगर आपका 8 है, तो यहाँ पे सेंटर में 5th लाइन पे आपका 7 होगा। ओके, और फिर Yes. 6 और 7 के बीच में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, तो जो थर्ड वाला बॉक्स है ना, उसका सेंटर ये आपका 6.5 होगा। स्केल से भी मिड पॉइंट ले सकते हो। देखो हर सम में ऐसा नहीं होता, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड सम की ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, बट ये मुझे पता था कि ये फोर्थ सम में ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए हमने ये पहले ही कर लिया। एक आध सम, 2 सम ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा पॉइंट्स का इशू आता है। ठीक है, और 10,2, तो ये कुछ इधर आएगा पॉइंट, तो इनको ज्वाइन कर लेना। सेकेंड लाइन 4,3, 4,3, तो समवेयर हियर
-4, -2, -4, -2, तो इसी के ऊपर आ रहा है पॉइंट, देखो। एंड -5.6, -3। अब 5.6 किधर है, -3 किधर है, पहले -3 इधर है, ये y का -3 है, ठीक है। और x का 5.6 यहाँ मार्क करना है। तो कैसे मार्क करेंगे 5.6? क्या करो पता है, 5.5 के जस्ट थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा ट्रायल एरर करो। आपका ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे बीच में आपका 5 होगा, फिर 5 और 6 के बीच में आपको 5.5 आता है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स के बीच में लाइन आता है ना, तो बॉक्स के एंड को पकड़ लो, तो वो आगे आपका 5.6 हो जाएगा। सर एग्जाम में इतने एक्यूरेसी से करना पड़ेगा? देखो, अगर आप ध्यान दो तो आपको ये थर्ड पॉइंट की अभी जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको जो दूसरी लाइन बन रही है आपकी, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई है। अब देख रहे हो, ये दूसरे लाइन का पॉइंट था, आपका इंटरसेक्शन तो आपको मिल भी गया, समझ रहे हो। देखो ये 2 पॉइंट्स तो मिल गए ना, थर्ड पॉइंट अभी हम मार्क कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये जो सेकंड पॉइंट था ये इस लाइन के ऊपर आ गया, तो आपका आंसर तो हो गया है, बट फिर भी हमें थर्ड पॉइंट करना है, तो हम कर लेते हैं। तो -5.6 यहाँ पे आएगा कहीं पे, एंड -3 यहाँ पे, तो दिस लाइन विल बी कहीं पे यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो अभी इसको ज्वाइन करना है। This is how you will get your graph. ये आपके सेकेंड इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और ये मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -4, -2। योर आंसर इज -4, -2। Do it. Done, everyone? सर 1 minute. सर आपने -5.6 -3 कहाँ मार्क किया? ये इधर है। सी, अब हम जो ये सम कर रहे हैं, हम जो लाइन प्लॉट करते हैं, वो 3 पॉइंट के हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट के हेल्प से हम इसीलिए करते हैं थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा मिले। आप 2 पॉइंट से भी लाइन को प्लॉट कर सकते हो। लाइन प्लॉट करने के लिए 2 डॉट्स चाहिए खाली, तो अगर 2 डॉट्स मिल गए तो भी लाइन पास हो सकती है उसमें से।
थर्ड तो हम खाली एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक सम करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल्दो वो भी सेम ही है बट एक छोटा सा डिफरेंस है उसमें. क्वेश्चन 4 हमेशा ओमिट होता है. क्वेश्चन 3 हम कर लेंगे बाद में. अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक सम करेंगे. See, yes, question number 1 में जो remaining questions है, they are for homework. Now question number 2, if you read the question number 2, they are saying taking the scale as 2 centimeter equals 1 unit. Draw the graph of the following and find the solution. तो उन्होंने स्केल को मेंशन किया है और चेंज भी किया है. उन्होंने क्या बोला, स्केल शुड बी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट. 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट का मतलब x एक्सिस y एक्सिस बनाओ और ये जो 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना, इसको हम लोग 2 4 6 8 नाम देते थे ना, तो अभी आपको 1 देना पड़ेगा इसमें. 1 2 3 4 ऐसे, बिकॉज 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट. उन्होंने बोला है 1 यूनिट है. -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे करना पड़ेगा. अभी समझ रहे हैं? ये प्लॉट करो. x एक्सिस y एक्सिस बनाओ. आई होप आपने प्लॉट कर दिया होगा. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. टेबल बनाते हैं. दूसरा इक्वेशन टेबल. Now, pay attention. Now what changes do we have to make here? आप अगर अपने ग्राफ को देखोगे तो आपके ग्राफ में वैल्यूज कितनी है आपके पास? 1 2 3 4. आई गेस मैक्सिमम 5 होगी. ठीक है, तो
तो इस बार जो आपका रेंज है वो और कम हो गया है। आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस पे जो वैल्यूज है अभी वो सिर्फ मैक्सिमम 5 तक है, या y एक्सिस पे 6 तक है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर योर x एंड y इज इन द रेंज ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 से कम ही है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। ओके, तो उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, y को मैं ले लेता हूँ 0 पहले, तो y is 0, so x will be 5 minus 3 into 0, so x is 5। y को 0 लिया तो x मिला 5। सर वॉइस क्या सर आपका वॉइस भी इसमें क्रैक हुआ था। वॉइस क्रैक हुआ? ठीक है, मैंने कहा कि y को 0 लिया तो x मिला 5। अब y को लेते कुछ और, y को मैं लेता हूँ 1, तो x क्या मिलेगा, 5 minus 3 into 1, 5 minus 3, तो x मिलेगा 2। y को 1 लिया तो x 2 मिला। यहाँ पे उल्टा गड़बड़ मत कर देना, y को 1 लिया है तो यहाँ पे ऊपर 1 मत लिख देना, नीचे 2 लिखोगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा गलती कहाँ हुई है। तो ध्यान से, एकदम ध्यान से, y को 1 लिया है तो y के बॉक्स में 1 डालना। क्या हुआ, क्या x में क्या आ रहा है, कौन कह रहा है, क्रिश, क्या हुआ क्रिश? सर एक्स एक्सिस में सिर्फ 1 2 3 4 ही आ रहा है। 1 to 4, वो लास्ट वाली लाइन भी काउंट करो ना, लास्ट वाली लाइन में 5 नहीं आ रहा है। हाँ लास्ट वाले में आ जाएगा। हाँ, वो वाला यूज करो लास्ट को भी। ओके सर। और अब y को क्या लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं। y को 2 लिया तो x मिला -1। ये हो गया पॉइंट्स रेडी, 5, 0, 2, 1, -1, 2। For second equation now, सर वीडियो इज ब्लर। Yes. It's yes, coming perfect for us. Yes, sir. no sir, no for what? सर ब्लर है थोड़ा सा। Video is proper. So it is proper. रीनव, देखो आपका रिचार्ज तो खत्म नहीं हो गया। नहीं सर। मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा कुछ ब्लर दिख रहा है तो मैं रीड आउट करूंगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आई इरेज दिस नाउ। अब क्या करें, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना देते हैं, सो 2x इज नहीं, 2x -3 को यहाँ लाओ तो इट विल बिकम +3 एंड y को यहाँ भेजो, सो इक्वल्स टू y and we will put the values of x, assume the values of x. So x को क्या assume करें, पहले 0 assume करते हैं as usual, सबसे सिंपल। तो x को अगर 0 किया तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 3। x को अगर 0 लिया तो y मिला 3। For x equals, x को क्या assume करें, 1 कर लेते, x is 1, टू प्लस 3 दैट इज 5, तो y मिल रहा है 5।
जब x को 1 किया तो y मिल रहा है 5। अब x को अगर 2 कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 7 नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी x को मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव -1 वैल्यू लेता हूँ, -1 लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ। सो फॉर x इक्वल्स -1, यहाँ पे -1 पुट करते हैं। सो -2 प्लस 3 इक्वल्स y, सो -2 प्लस 3 इज 1। तो जब x को -1 लिया तो y मिला 1। देखो सारे वैल्यूज हमारे रेंज में है, सब 5 के छोटे 5 से छोटे नंबर्स है, तो वी कैन इजीली प्लॉट इट इन 1 सेंटीमीटर ग्राफ। 1 unit 2 centimeter is equal to 1 unit graph paper। तो प्लॉटिंग स्टार्ट करो। सर 5 है ना, एंड ऑफ द ग्राफ उस पे आ रहा है, बॉर्डर पे। चलेगा चलेगा, यूज करो यूज करो। थोड़ी सी इस लाइन को थोड़ा सा ग्राफ पेपर के बाहर लेके जाओ और उसको यूज करो। लेट्स प्लॉट द वैल्यूज 5, 0, तो यहाँ पे आएगा 5, 0, 2, 1, x is 2, y is 1, तो यहाँ पे आएगा -1, 2, -1, 2 मतलब इधर। Then 0, 3, x is 0, y is 3 मतलब इधर। Then 1, 5, x is 1, y is 5 मतलब इधर। And -1, 1, -1, 1 मतलब इधर। सबको ऐसा ही पॉइंट्स मिल रहा है? सर ऐसे लग रहा है मिस्टेक है किधर।
ओके, मिस्टेक हो गई एक, क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया। ये जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स +3 है। ये हमने -3 कर लिया था और सारे पॉइंट्स गलत आ गए। एक काम करो, वो वर्किंग जो की है ना, ये सेकंड इक्वेशन वाली वर्किंग जो की है ना, उसको हटा दो, उसको इरेज कर दो, मतलब उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। फर्स्ट राइट है, जो इतना किया है ना वो राइट है, ठीक है। खाली इसके अंदर जो मैं वैल्यूज देता हूँ वो लिखो, मैं डायरेक्ट वैल्यूज दे देता हूँ, वो लिख दो। जो इसकी वर्किंग की थी ना, उस वर्किंग को कैंसिल कर दो, क्योंकि वो गलत था, बिकॉज वो -3 नहीं था, +3 था। वो कॉपी करते वक्त मैंने -3 लिखा था, तो वो मिस्टेक थी। तो अगर ये आप ये लोगे तो इसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स आएंगे। अभी इस पॉइंट्स को प्लॉट करो, यहाँ पे ज्यादा कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा। इस पॉइंट्स को प्लॉट करो, ये वाले पॉइंट्स को। टेबल चाहिए तो वापस बना दो। टू वन मतलब यही पॉइंट। 3, 3, so it is somewhere here, and 1, -1, 1, -1 means here. Make sure you make the changes in the scale. Scale में लिखना 2 centimeter equals 1 unit, ये लिखना मत भूलना। Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir, done. So answer 2, -1.
सर Will- आंसर 1 है. आंसर 2 1 है. यस, 2,1. दिस इज द आंसर. यही पॉइंट आंसर है आपका. 2 1. ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज. ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, सो दैट आपको थोड़ा हेल्प हो. एंड मैं आपको होमवर्क दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. आपको होमवर्क करना है. क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सारे सम्स वापस करने हैं. और थोड़ा सा हेल्प के लिए, अगर आपको वैल्यूज ना मिले तो थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. Sir, will you send a video of this chapter? यस, So will you send a video of this chapter in the group?